Hello everyone. In economy series, as I have mentioned to you in my previous videos, that I am going to take this series on a top basis, on a top level. Whereas I got a lot of responses from your end, and a lot of people have suggested me that hey, why don't do it in a classroom manner? It is quite beneficial from both hand to get all the clarity of the concepts and of course the interlinkages and the connection of the current and emerging what is happening in the economy on a ground level. In a recent past, we have started one financial literacy program. In an institute named after Infallible Study. So you can directly go to YouTube and just mention Infallible Study and you will be getting my own videos. Okay, so here I'll be mentioning about all the financial terminology, finance terms, and all the, of course, the institution. Of course, it was mentioned there in a chapter wise. And though I was quite busy with my own certain own assignments, so in this regard I didn't post my own videos. So let's start without spending even a single. In recent past, if you witnessed that our GDP data was released and it shrank by 7.3%. If you have remembered that in one of my videos where I have mentioned in December, it was shrank by 23.9%. At the same time, I am giving you one more statistics that on 24th of May 2021, I mean 24th of May this year, we have crossed 3 trillion economy in Indian capital market, okay, Indian equity market. So we have crossed 3 trillion. At the same time, our GDP was shrink by minus 7.3%. There is a one organization named after Moody forecasted that in upcoming financial year our GDP growth will be somewhere around 9.3% to 11%. It varies. Even RBI has in this Friday in one of its bi-monthly report mentioned that India's GDP will go somewhere around 10%, but it slashed 9.3%. These are the statistics. So what we are trying to say? We are trying to say that GDP is shrinked by negative minus 7.3% from minus 23.79% to 7 point in one quarter, and but this data is annual. At the same time, Indian capital market is at peak, at its apex point, $3 trillion we have crossed. And what is our target on 2024? If you have remembered, इंडिया को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है 2024 तक. ये एज ए नेशन वाइड ये हम लोगों का एक टारगेट है, एक हमारा लक्ष्य है. और 3 ट्रिलियन हम लोग 24 मई 2021 को ही क्रॉस कर गए. तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, हम लोग ये कहना चाहते हैं कि ये 3 ट्रिलियन से 2 ट्रिलियन अब हमें जाना है 3 इयर्स में. और इसके अलावे मैं एक जर्नी आप लोग को बता दूं. एज ए नेशन वाइड वी हैव क्रॉस्ड in 2007 1 trillion. In 2007 we have crossed 1 trillion. In 2017 2 trillion.
and in 2021 3 trillion. These are the facts. Kindly just you can see here. 2007 में 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बना हमारा कैपिटल मार्केट. ये कब की बात है? 2007 एज ए नेशन वाइड. 2017 में 2 ट्रिलियन, 2021 में 3 ट्रिलियन. Even a school going child can see this data and he can infer that we took 10 years to add 1 ट्रिलियन. 10 साल हमने लगाया 1 ट्रिलियन को ऐड करने में. 2007 में 1 ट्रिलियन हम लोगों ने इकोनॉमी को अचीव किया और 2017 में, और 2017 से 2021 1 ट्रिलियन और ऐड करने में we need only 4 years. And needless to say that in 2019 से 2021 ये तकरीबन आप 2 साल ही कह लीजिए, ये कोविड एरा था. कोविड-19 एरा, इसको एरा ही कहेंगे इस पैंडेमिक को. And there were no economic activity at all in this. लास्ट अप्रैल अगर हम 2020 की बात करें तो आप लोगों को एक स्टैटिस्टिक्स या एक इंफॉर्मेशन जनरल भी पता होगा कि नॉट अ सिंगल ऑटोमोबाइल वाज सेल इन दैट 30 years. अभी तक की ये पोस्ट इंडिपेंडेंस हमारी जो हिस्ट्री रही है तब से ऐसा हुआ. तो ये 10 साल लगा हमको 1 ट्रिलियन ऐड करने में, और 4 साल लगा जो है हमको 1 और ट्रिलियन ऐड करने में. और ये कोविड एरा था या इकोनॉमी हमारा या पेंडेमिक सिचुएशन था. Here I would like to quote again Mr. Warren Buffett, and in one of my videos also I have mentioned, and in almost every video I would like to mention him, that no matter what happens the next generation will lead always a better life. कुछ भी हो जाए अगले जनरेशन जो है वो एक बेटर लाइफ जो है वो जिएगी. I'm not talking, or he is not talking in the context of spirituality or other things, but yes, materialism and this context. अब देखिए कैपिटल मार्केट तो हमारा है, और एक हकीकत है कि जीडीपी हमारी जो है वो नेगेटिव जा रही है. तो एग्रीगेट डिमांड का जो हमारा इक्वेशन है इसको समझा जाए कि आखिर ये फेनोमेनन हो क्या रहा है और इसके पीछे की सच्चाई क्या है. आइए कोशिश करते हैं इसको समझने की. अब क्योंकि इस इक्वेशंस का मैंने बहुत इस्तेमाल किया है तो ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोग इस वेरिएबल्स को समझ पा रहे होंगे. जैसा कि ये सी, ये हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आई इन्वेस्टमेंट, जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या पब्लिक एक्सपेंडिचर कहिए, और नेट एक्सपोर्ट मतलब कि एक्सपोर्ट और माइनस इंपोर्ट. एक्सपोर्ट और इंपोर्ट. एक्सपोर्ट मीन्स सेलिंग योर कमोडिटी आउटसाइड योर टेरिटरी, इंपोर्ट मीन्स परचेजिंग फ्रॉम. अब देखिए ड्यूरिंग कोविड जो आपका कंजम्पशन मतलब कि ये हमारा जो डिमांड था, ये आपका ये फैक्टर जो है वो नेगेटिव था, मतलब डाउन था. अब ये इक्वेशंस को आप देखें तो ये सब प्लस में एडिशन में है, तो कंजम्पशन तो आपका हुआ ही नहीं साहब, है ना. एक्सपोर्ट एक्टिविटी हमारी बहुत अच्छी नहीं रही. हालांकि इन रिसेंट पास्ट अगर आप अप्रैल 2021 का डेटा अगर पिछले साल से हम लोग कंपेयर करें तो अच्छा है. अभी जो रिजल्ट आया है एक्सपोर्ट हमारा थोड़ा इम्प्रूव हुआ है, लेकिन हम लोग जो पिछले 1.5 years का कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट तो हमारा बहुत अच्छा है, ये जो एक्टिविटी था भी नहीं. इम्पोर्ट हमारा जो है क्योंकि अब डिमांड नहीं है तो ये भी हमारा, तो इस फैक्टर को हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं क्योंकि क्लोज्ड लॉकडाउन इकोनॉमी हमारी बंद हुई, तो इस एक्टिविटी को हमने. गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यस ऑफ कोर्स गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर फ्रॉम बोथ हैंड. ये यूनियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस या बहुत सारे उसके इंफ्रास्ट्रक्चर जो हैं फैसिलिटीज़ या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, करंट जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स थे वो जो रन कर रहे हैं, तो यस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हुआ.
इन्वेस्टमेंट कोई हमारा बहुत अच्छा है, इस बीच में नहीं हुआ, हाँ कैपिटल मार्केट में हुआ। तो हमारा ये जो है आउटपुट, तो जो इकोनॉमी हमारी जो है ना, जो माइक्रो इकोनॉमिक जो स्टेबिलिटी की हम लोग बात करते हैं, या फिर जो माइक्रो, तो ये इंडिकेटर्स बता रहे हैं कि हाँ साहब हमारा जीडीपी ग्रोथ तो नहीं, ये सही, ये हकीकत है। एट द सेम टाइम जब हम इंडियन कैपिटल मार्केट या फिर इक्विटी मार्केट की बात कर रहे हैं, तो एक इसमें मैं एक और स्टैटिस्टिक्स देना चाहूँगा जो इकोनॉमिक सर्वे से आप रेफर कर सकते हैं, दैट 19.4 लाख करोड़ इतना ट्रांजैक्शन आपका लास्ट फिनेंशियल ईयर में ये आपका हुआ है यूपीआई से, यूपीआई के जरिए, यूपीआई आईएमपीएस यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जिसको हम लोग कहते हैं, मतलब आप डिजिटली जो वॉलेट सब लोग ये पेमेंट करते हैं। एंड 1 लाख 1.4 कह लीजिए, नियर अबाउट 1 लाख करोड़, ये स्टैटिस्टिक्स जो है आप इकोनॉमिक सर्वे से रेफर कर सकते हैं। अगेन आई एम टेलिंग यू, इकोनॉमिक सर्वे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये 1 लाख करोड़ का आपका रुपे कार्ड पेमेंट हुआ। तो इस फेनोमेनन को कैसे समझा जाए कि इकोनॉमी पस्त है, कैपिटल मार्केट मस्त है। तो इकोनॉमी आपका जो है पस्त है, तो इसको हम ये जो कह रहे हैं, जो इकोनॉमिक ग्रोथ या फिर जीडीपी या हमारा ये श्रिंक कर रहा है जी, और है, तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स और कंपोनेंट्स ये हमारे, ये आपके डाउन होंगे, तो ये क्वेश्चन है। बट एट द सेम टाइम आप अगर देखें तो ये जो स्टैटिस्टिक्स बता रहा है कि लास्ट 4 इयर्स पे जो हमारा 1 ट्रिलियन जो ऐड हुआ है, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं डिजिटल इकोनॉमी जो है, और ये स्टैटिस्टिक्स बता रहा है हमारी इकोनॉमी जो है अब धीरे धीरे ट्रांसफर हो रही है। यू टेक माई ओन एग्जाम्पल, जब कोविड एरा नहीं था, प्री कोविड, आई गो टू वन सिटी टू अदर सिटी टू अटेंड कॉन्फ्रेंसेस एंड टेक सेमिनार, दो आई डोंट लाइक सोशल मीडियाज, but I am forced to post my videos on YouTube, or even from my institutes where I was affiliated or I was associated, they requested me to come on online forum कि आप ऐसा करें कि सर ऑनलाइन आ जाए, ये ऑफलाइन जो है लॉकडाउन, तो उसमें तो अब हमारा जो भी एक्टिविटी है वो ऑनलाइन है। तो एक डिजिटल इकोनॉमी के तौर पे हम लोगों का एक पैराडिम शिफ्ट अगर आते हैं तो एक हो रहा है धीरे धीरे। और मैं आपको ये काफ़ी आई एम टेलिंग विथ वेरी कंजर्वेटिव एस्टिमेट दैट द एरा or the decade 2020 to 2030, so एक साल तो हमारा चलिए निकल गया 20 से 21, ये तो हमारा चलिए ये पास 2020 to 2030 and first 5 years, I won't be surprised to see that Indian economy will grow with a double digit 10% or even more than that. अगर आपका डबल डिजिट ग्रोथ जो है, ये ग्रोथ होना ही नहीं, इस ग्रोथ पे सस्टेन भी करेगी हमारी इकोनॉमी 10 to 10 नेक्स्ट डिकेड जो है 20 to 2030, ये डिकेड इंडिया का है। आई एम टेलिंग विथ द फुलेस्ट एक्सटेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि अब ये यूट्यूब पे ये रजिस्टर्ड ही हो जा रहे हैं ये वीडियो, तो उसमें पीछे हटने का तो कोई मतलब बनता नहीं है। विद द फुलेस्ट एक्सटेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आई वॉन्ट बी सरप्राइज टू सी दैट 10 to 11% दैट वी आर नॉट गेटिंग। दिस इज द वन थिंग दैट जस्ट होप फॉर द बेस्ट। अगेन इकोनॉमी को एमपीसी, अभी इस फ्राइडे को आप अगर देखें तो इस फ्राइडे को आरबीआई की एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है उसने अभी इंटरेस्ट रेट जो हमारा है उसको अनचेंज किया है, मतलब कोई चेंजेस नहीं। एंड एट द सेम टाइम एक सेपरेट विंडो RBI has opened a separate window
for certain industries named after hospitality, tourism, aviation, travel industry, and RBI has given 15,000 crores especially to these industries and sectors. अब देखिए, जैसा कि आपको पता होगा कि लॉकडाउन एरा में ये टूरिज्म, ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, एविएशन, ये जो हैं इनका बिजनेस काफ़ी खराब रहा, कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं रही। तो इनको इन ऑर्डर टू प्रमोट RBI हैज ओपनड अ सेपरेट विंडो फॉर this sector and infused 15,000 crore liquidity to elevate this sectors. तो अब आपको अब देखिए, जो इन्वेस्टमेंट जो मैं कहता हूँ कि आप टेक्स्ट बुक की स्टडी, और ऐसा लोगों में एक मिसनोमर है कि द स्टडी ऑफ टेक्स्ट बुक एंड जो प्रैक्टिसेस हैं ये दोनों सेपरेट चीज़ें, ऐसा नहीं है। इफ अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी अगर है, क्लैरिटी ऑफ थॉट जिसको कहते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, एंड इन ऑर्डर टू इफ यू आर गोइंग टू कोरिलेट बिटवीन दिस टू, तो इन सेक्टर्स में आप जो है अच्छे स्टॉक्स या फिर इसके जो इंडेक्स आप खुद बना के, जो भी मार्केट प्लेयर है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ के लिए फॉर द नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स। एक अब दूसरी बात, जैसा कि आपको पता होगा, इंडेक्स फंड वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था, इन लॉन्ग टर्म में एक लीनियर रिलेशनशिप को ये शो करता है। कौन? जीडीपी और आपका ये इंडेक्स। इंडेक्स मीन्स आप निफ्टी 50 कह लीजिए या BSE 30 कर लीजिए, सेंसेक्स। एक लॉन्ग टर्म में लीनियर रिलेशनशिप को, मतलब कि द एक्टिविटी, जैसे कि ये आपको निफ्टी 50 का जो फेनोमेनन है इन लॉन्ग टर्म मीन्स 10 ईयर्स एटलीस्ट 5 to 10, तो आपका जो इकोनॉमिक ग्रोथ है जीडीपी, तो जीडीपी से ये एक लीनियर रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करता है एंड इट इज एक्सप्लेन्ड बाय दिस जीडीपी। तो दैट इज द रीजन वाई मैंने ये कहा था कि एक नो नथिंग इन्वेस्टर जिसको कुछ पता नहीं है, या इवन वो ये कहता है कि जीरो नॉलेज है मेरे को कैपिटल मार्केट के बारे में, वो भी इस थ्योरी को इस रिलेशनशिप को समझकर वो एक बहुत ही आराम से इसमें इन्वेस्ट कर सकता है इंडेक्स फंड में, और एक अच्छा वो एक कैपिटल वेल्थ जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो जनरेट कर सकता है। ये एक अंडरस्टैंडिंग है। तो इकोनॉमिक बैकग्राउंड जो है, इकोनॉमिक्स में जो हम लोग नॉर्मल जो टेक्स्ट बुक में सीखते हैं, अब जैसे कि अब देखिए, अब आरबीआई ने बॉन्ड मार्केट को बढ़ाया, बॉन्ड मार्केट या डेट मार्केट या मनी मार्केट कहिए, इट इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई, एंड कैपिटल मार्केट इट इज रेगुलेटेड बाय योर सेबी। तो जो भी डेट इंस्ट्रूमेंट है, बॉन्ड है, तो अब देखिए बॉन्ड और इंटरेस्ट रेट का क्या रिलेशन है ना। अब देखिए मनी सप्लाई, इंटायर मनी ऑफ योर इकोनॉमी, मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट का इनवर्स रिलेशनशिप होता है, मतलब कि एज इंटरेस्ट रेट जैसे जैसे कम होगा, मीन्स बोरोइंग रेट आपका कम होगा, तो अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होगी, तो इंक्रीज होगा मनी सप्लाई। ये मैं मॉनेटरी ट्रांसमिशन चैनल में सेपरेटली मैं बताऊंगा इसको, ये कैसे मैकेनिज्म वर्क करता है। लेकिन आप अगर ये देखें कि इन्फ्यूज किया है आरबीआई ने डेट मार्केट में, तो बॉन्ड मार्केट इंटरेस्ट रेट चेंज होगा, तो बॉन्ड यील्ड आपका जो है ये भी बेहतर होगा, तो ये भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप बॉन्ड में जो है आप परचेज कर सकते हैं, बॉन्ड में आप जो इन्वेस्ट कर सकते हैं, और ये कैपिटल मार्केट से भी।
तो जो फेनोमेनन है कि दैट निफ्टी एंड सेंसेक्स एंड इकोनॉमिक ग्रोथ योर जीडीपी दैट बोथ आर लीनियर रिलेशनशिप जो है इन लॉन्ग टर्म में डिकेड में अगर हम लोग कह लें तो वो इस्टेब्लिश करते हैं। और इसको आप अपने मतलब कि ओन एक्सरसाइज इवन यू जस्ट सिटिंग इन योर ओन रूम एंड यू जस्ट टेक डेटा फ्रॉम इकोनॉमिक सर्वे और इवन फ्रॉम सर्टेन or any reliable sources, you can do it this analysis on with your own. तो what we are trying to say that कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ आता है जो जीडीपी का हमारा है ये एक फेनोमेनन होता है कि जैसे एक और देखिए एक मार्केट कैप अपॉन जीडीपी। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब हो गया कि टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने हैं एंड मल्टीप्लाइड बाय द वैल्यू ऑफ। तो टोटल मार्केट कैप्स मतलब कि आपका एक्सपोजर कितना है आपके इस मार्केट का कैपिटल मार्केट का। तो जैसा कि मैंने बताया कि 3 ट्रिलियन और जीडीपी जो आपकी है तो ये जो रेशियो है ना तो जीडीपी अब आपका ये नंबर क्या हो रहा है ये अगर श्रिंक करेगा तो डिनोमिनेटर छोटा है। यू गो बैक टू स्टैंडर्ड 6 न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर जो हमने वहाँ पे पढ़ा था स्कूल गोइंग जो बच्चे होते हैं घर में तो उस कॉन्सेप्ट को ही आप इस्तेमाल कीजिए कि जब डिनोमिनेटर का ये कंपोनेंट है जब ये हमारा श्रिंक कर रहा है छोटा हो रहा है तो ओवरऑल हमारा जो रेशियो है वो बढ़ेगा। और मार्केट कैप हमारा ये न्यूमरेटर भी बढ़ रहा है तो ओवरऑल जब ये बढ़ रहा है तो मतलब ये है कि कैपिटल मार्केट साहब हमारा बढ़ेगा ही बढ़ेगा कुछ भी हो जाए। अगेन वही वॉरेन बफेट को मैं यहाँ पे कोट करना चाहूँगा कि नो मैटर व्हाट हैपेंस नेक्स्ट जनरेशन विल लीड ऑलवेज अ बेटर लाइफ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से हम लोग कहाँ चले गए दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई। ठीक वैसे ही ये कोरोना जो है ये कोविड है ये कुछ सर्टेन टाइम्स ड्यूरेशन पोस्ट वैक्सीनेशन जो है उसके बाद से वी आर गोइंग टू बाउंस बैक वेरी हेवीली and there is no doubt in that as I have mentioned to you that I won't be surprised that from next year financial year onwards we are going to achieve a double digit growth। और एक और एनालिसिस एक और मैं आपको I can give you one more alternate angle of thinking। एक थोड़ा सा आप देखें 1999 onwards the kind of the political stability we get in this country 1999 2004 NDA 1 एक गवर्नमेंट थी स्टेबल गवर्नमेंट 2004 2009 यूपीए 2 यूपीए 1 गवर्नमेंट थी स्टेबल गवर्नमेंट थी 2009 2014 स्टेबल गवर्नमेंट थी एंड 2014 to 2024 अगेन एनडीए or you can say that BJP because it is an absolute majority। So the kind of that what I am trying to say that in a nation-wise 1999 to 2024 our journey is 25 years। If you see as in my previous videos also I have told 100 years का अगर आप एक डिकेड अगर हम लोग दें मतलब डिकेड वाइज 10 अगर ऐसे हम लोग देखें तो ये 10 डिकेड का एक 100 years होता है एंड 150 60 75 years अगर आप 100 years का एक स्पैन ऑफ टाइम ले रहे हैं एज ए नेशन वाइज उसमें कोई 3 4 5 साल अगर आपका कोई बहुत ज़्यादा अगर इकोनॉमिकली इफ वी आर नॉट गोइंग टू डू वेल तो ये कोई बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि कोई कोलैप्स कर गया आपकी इकॉनमी सब कुछ जिस तरह से नेगेटिव थॉट है एक सेंस ऑफ नेगेटिविटी डेवलप करने लगता है लोगों में ऐसा कहीं कुछ नहीं है। वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वी आर गेटिंग 25 years में। अब इस जर्नी में जैसा कि 2007 में हम लोगों ने 1 ट्रिलियन को क्रॉस किया था एंड 2017 में हमने 2 ट्रिलियन को और 2021 में हैव ऑलरेडी क्रॉस 3 ट्रिलियन इकोनॉमी 5 ट्रिलियन में। तो एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो हमारे कंट्री में आई और दोज हु हैव रिमेंबर्ड इन दैट एरा लाइक अर्ली 90s और 90 to 99 द कंट्री हैज फेस्ड 96 one general election was there 91 general election was there 98 one more general election was there 99 3 to 4 5 हम लोगों ने जनरल इलेक्शन देखे हैं
और भी स्टेट में भी बहुत जगह जो है वो, तो इसका एक इम्पैक्ट आपकी इकोनॉमी पे भी पड़ता है। एफडीआई जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो एक्टिविटीज़ भी आपकी काफ़ी इन्फ्लुएंस होती हैं बहुत सा, क्योंकि आपको एक अनसर्टेनिटी, तो एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है ये फैक्टर भी आपकी इकोनॉमी को काफ़ी बूस्ट कर रहा है ना। कि स्टेबल गवर्नमेंट हम लोगों ने देखा है 1999 से 2025। सो ये जो टिकट है ना 2020 से 2030, 10 years, 1 years already, I mean, yes, we are in June, so 5 to 6 months already it has been spent. So we are going to get 10 to 11%, and I am really quite positive, and I am hoping that in 2024 we are going to get this 5 trillion as a nationwide. It is a target as fixed by this government. So as a nationwide we are going to achieve in 2024. From next video, in upcoming video, as I mentioned to you that I am going to deal with the chapter wise. So in next I am going to deal you balance of payments and how international this economics is going to influence this in like it is impossible to treaty kind of thing. I am going to discuss in my next video. Till that, thanks, have a nice day.